Okay, so far, like we have, as of now, we have configured activity services, right? And also we try to create some users, property and group security group distribution groups, right? So now today, I will explain something about the Active Directory internal files, how it works, what is the database, temp file, the internal component, right? So we'll go through it, and after that, you will create some users by yourself, like a lab. Then we'll try to check whether what you have created user can be able to log into client machine or not. Yesterday you have created one, so then you can create today. So you'll also have some idea, some confidence on how we can work. Normally in production also we'll work in same way. So we'll take a remote server on laptop or desktop. Then what you are doing here and what I'm doing, same thing will be in production. Only the user's quantity environment will be different, but the way working style will be same thing. Like you will issue one ticket from end user or HR team. Okay, this is the user, new user. He is going to join so and so date. So we will take the all details, then we will create it and we will provide the relevant access. Relevant access, we will add the in the relevant groups to get the access. Then they will provide us. Okay, you have to add so and so group. So just we have to do create a user and add to that group. Then we have to send password to the concerned team manager or HR team. So they will forward that mail to that new guy, right? So he will log in first and then he will do all these things, right? This is the way how it works normally in production. So now, okay, I have started the domain machine. Then I'll start client as well, right? So, oh, see. Yeah, so sorry, actually I missed out. Okay, so making the domain control full screen to see better. Getting connected. Okay, so I'll put in a full screen mode so that you can see properly. Right. So this is our domain control we have created here, right? So our domain control is the digisol.in. So while creating, we will give the path where our database log, all these things and system volume folder configuration policy will be stored in the our drive like C drive. Default would be C drive, but if you want, you can customize. Better we recommend keep a C drive only, because everybody knows. Okay, that file would be in a default path. If you are doing, you maybe you are in 2 years, then you left the company, then somebody is coming. If you didn't get any proper KT or something, then he will try to search out where that file is gone or where that path would be, something like that, right? So better you keep C drive. Yeah, C drive as a default path. It will take automatically C drive, right? So that is a good idea. But if you want, still you can customize as per your requirement, but you have to document properly, right? So this is my C drive, right? So C drive Windows and NTDS folder. This is the right. This is my path where my Active Directory content or database and details and files will be stored, right? So while configuring our Active Directory service, we have given this, means it is automatically selected,
By default, it will take this path only. If you want, we will go for another like D drive or any path. But my recommendation or Microsoft recommendation would be you give the default path. So C colon backslash Windows backslash entity. So you can see multiple files here, right? Different file with the different extension of the file name, right? Something .jrs is there, .chk is there, .dit is there. Okay. So ntds.dit is the main database for Active Directory. Just remember it. This is a very important name. In interview, they will ask what is the Active Directory database name. ntds.dit. DIT means Directory Information Tree. NTDS is the name. .dit extension is different extension that is only for Active Directory. So Directory Information Tree, DIT, right? And what is NTDS? NTDS is that name would be Only name. Yeah. This extension is the DIT, is the Directory Information Tree, right? So this is the database name. Means this Active Directory database is the only one file, right? So we'll see the property as well. See, you can see details also, right? Name entities.dit, type dit file, folder path and everything, right? Owner who is the administrator, computer where it is situated, all this thing, right? So this is the main file. Sorry, not a file. This is a database. We can say, or file, right? File, but it is actually database where that our data objects, created data will be stored in that file. That's the main file, right? So what is the other file? So we will yeah, during my class I have explained you any object we are creating, any object, computer object or account, AD account, user object. So it is not going to immediately commit or save in this database. First it will go to the transaction files or log files, right? Because I am creating one object, then I immediately maybe I missed something. Maybe I put some wrong info. Then I am trying to correct it again. So if I committed that object in the database, then again it will make changes. So it is a very long queue, and also it is overloading to the database. We are overloading, right? And if there is something small change also, it will have to go to database, then you have to commit it or change it, right? So that's why what it will do. This Microsoft did. So they have taken this some log files or temp files. That actually log files will be created when I create any object. So log file will be created, right? So that first it will go to log file. Then in sequence that database will commit each log file and store the content in the database. This is the way. Then it will, that log file will be purged, means deleted, right? So this is how it works. This is the normally works like in this way, right? So here we'll avoid the overloading the database, because directly we are communicating. Maybe we are creating one user, okay, fine. At a time, 1,100 users we are creating, then we are going to give load on the database. That's why there will be a log files or temp files, right? So log file will be the temp file. Yeah, this temp is a different, but it will be created the like different. You can see EDB0 to this type. It will be created. Okay. 10 MB file will be created. This temp I will explain what is the temp. Okay. So EDB this like here you can log see file. Yeah, 002 is created, right? So this is log file. So it will go 03, 04, 05. 10 MB space will be there. So it will create 10 MB. It will take the 10 MB, 10 to KB means 10 MB space. So it will take the 10 MB content or data into that file. It will finish. It is that space will be finished. Then it will create one more EDB file, right? So then like 002, 003, 4, 5, like that it will go, right? So now what is the temp EDB and EDB.chk and .jrs file? This is an important file. This is supporting files, you can say. Is a temp. Suppose that you this in C drive your space is gone to 0, or you are going to lost the space in that drive, right? Due to some reason, because something came up in this drive, then
So if any transition is going on, right, already, or you want to create something, some object, right? That time, if there is no space, then you cannot create because there is no space. So what it will happen? It will utilize this temp EDB folder space to create the object, right? So temporarily, but this space also finished, then we cannot create an object. And also we have the two reserve files, GRS. In the same situation it will work. If your space is finished, there is no space in C drive where this accelerated database content, that time it will utilize what running transition, like you are doing some creating object, that time that running object will be utilized by this .jrs file. Then once that transition is finished, then it will not allow you to create more objects unless you create a space in that drive, right? And .chk, what is a checkpoint we can. So suppose you are doing something, immediately that server got down, right? Who will be keeping that eye? What all content transaction will be committed or saved, right? So that .chk will have that capacity to keep the track what all content is committed to database, what all not. So accordingly, it will start the again once server is up, then it will start writing to the database. That is the .chk. So this is the normal files. Anybody in Intune can ask what is the database file, what is the EDB, what is the .chk, what is the .grs. So 3 points they will ask. This is the internal NTDS folder details, like, right? So this is the Active Directory main details is there. Log file, check file. Log file, checkpoint, and .grs and .dit is the database. This is the Including the temp file. Temp file. So you can remember majorly entities.dit is the database file, right? And edb.c is checkpoint, which keep the track, which is the committed to database, which is not committed, means saved or not saved, right? And .grs is the two files, 10 MB, it is a reserve file. Whenever your space is going to finish or there is no going to going to zero the drive, that time what a running transaction you are on the way transaction will be stored into that .grs reserve file. Then next another new transaction will not allow until unless you create more space in the drive, right? Is it clear? Okay. So, okay, Tanvir, you can come here and we can create user. So you can also come here. Let's see. ये लैपटॉप को कीबोर्ड लगाओ तो क्या आपको चलेगा? ये कीबोर्ड लगाओ क्या? नहीं, हाँ जरा अच्छा रहेगा, राइट? In mouse. Okay. So आपको टेक्निकल क्लिक पे राइट क्लिक करना है. टेक्निकल क्लिक, हाँ, राइट क्लिक, न्यू यूजर, न्यू पे क्लिक करो. यूजर आपने क्या क्रिएट करना है? यूजर क्रिएट करना. नीचे आ जाओ, राइट. अभी आपको फर्स्ट नेम ला आपको खुद का ही कर दो. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पहले फर्स्ट नेम टाइप करो. कभी भी स्टार्टिंग जो रहेगा कैप्स रखना, बाकी no need to इनिशियल की जरूरत नहीं, जस्ट गिव द लास्ट नेम. जो भी ये आएगा डिस्प्ले नेम वैसा बनेगा, मतलब फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम इक्वल टू फुल नेम या डिस्प्ले नेम. ओके, ये डिस्प्ले इसी तरह का तुम्हारा हो जाएगा, राइट? अभी यूजर लॉगर नेम आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डॉट लास्ट नेम दे सकते हैं, या सिर्फ फर्स्ट नेम दे सकते हैं, या लास्ट नेम दे सकते हैं, या फर्स्ट नेम का फर्स्ट वर्ड डॉट लास्ट, ऐसा. तो आप अभी फर्स्ट नेम ही दे दो. वो अपना नेमिंग कन्वेंशन जो भी अपना अपना कंपनी का रहेगा, जो हम वो उसमें डिपेंड, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने इजी के लिए बस है. हाँ. अभी नेक्स्ट करना आपको,
ठीक है, अभी यूजर लॉगिन नेम क्या हुआ, तनवीर हुआ। तनवीर हुआ। जब लॉगिन करना है आपको तनवीर टाइप करना है, Okay. बट तुम्हारा फुल नेम तनवीर तनवीर शेख शेख। आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी अपने को पासवर्ड देना है। हमने अभी ये हम नॉर्मल लैब में कर रहे हैं, ये चेक मार्क है यूजर मस्ट, ये हम यहाँ पे हटा सकते हैं, बट प्रोडक्शन में नहीं हटाने का। ठीक है, इसको हटा दो और आपको पासवर्ड नेवर एक्सपायर वाला ले लो। अभी आप पासवर्ड रखो जो भी आपको चाहिए, वही रखता हूँ। वेलकम। नेक्स्ट करना है। एक सेकंड ना, ये यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नीड लॉग ऑन। हाँ, ये अपने को प्रोडक्शन पे करना है। Okay. यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अभी जब अभी लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम में पूछेगा। Okay. उसके लिए अपने को Time टाइम जाएगा। किया जाए, User उसके लिए हम को- हाँ ये पासवर्ड नेवर एक्सपायर का Okay. वो अगर अपने को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हमको कंपलसरी करना है, उसके बिना हम किसी को अकाउंट नहीं क्रिएट करते। Okay. क्योंकि हम जो रखते कॉमन रखते वेलकम सो एंड सो। अभी 10 यूजर क्रिएट करें 10 का वही होएगा, तो एक दूसरे को बोलेंगे तो फिर वही फिर एक दूसरे का ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं फोर्स कर रहा हूँ उसको तो वो क्या करेगा, जैसे फर्स्ट टाइम में चेंज कर लेगा अपना। ठीक है, तो सिक्योरिटी रीजन, बाकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अब ये इंफॉर्मेशन है, यूजर का क्या नाम है, यूजर लॉगिन नेम क्या है और कहाँ पे क्रिएट हुआ, क्रिएटेड इन दी डिजिसॉल इंडिया पुणे। हाँ एग्जैक्टली। तो तुम्हारा वो फुल पाथ है। मतलब अगर तुमको यूजर कभी कभी तुमको फाइंड करने का रहता है कि कहाँ पे है, क्योंकि अभी तो छोटा इन्वायरमेंट है, कभी बहुत इन्वायरमेंट हुआ तुम्हारा 8-10 साइट्स है, राइट। तो तुमको कौन सा यूजर का 1000, 10,000, 20,000 यूजर्स है, तो ये रन में जाके फाइंड करूंगा नहीं आपको। हाँ यूजर को रन में जाके फाइंड करेंगे, फिर बाद में आपको डबल क्लिक करें तो ये पाथ बताएगा कहाँ पे स्टोर है। ओके ठीक है, तो मैं वो भी आपको समझाता हूँ। ये अभी फिनिश करो। ठीक है, अभी ये हुआ। अभी ये आपने यूजर किया, आप अभी ग्रुप क्रिएट करो यहाँ पे। नहीं, यहाँ टेक्निकल टीम। हाँ, अपन ये टेक्निकल टीम अपना ओयू है, कंटेनर है, ऑब्जेक्ट कंटेनर। उसके अंडर में जो भी क्रिएट करेंगे तो वहां पे जाएगा वो। ठीक है, तो आपने को ग्रुप यूजर ना नहीं ग्रुप करना है। अभी यूजर किया हमने ग्रुप नेम आपने क्या भी जो भी कुछ रखना है रख सकते हैं, एचआर ग्रुप या एडमिन ग्रुप। कभी भी वो मैं बोला ना कि फर्स्ट अल्फाबेट कैप्स रखो। मतलब अभी आपको देखना है कि क्या आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप नाम दे देना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप मतलब तो मेल डिस्ट्रीब्यूट, हाँ मेल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। सिक्योरिटी मतलब परमिशन के लिए, जैसा कि एचआर फोल्डर है, एडमिन फोल्डर है, टेक्निकल फोल्डर है, तो ये फोल्डर को एक्सेस दे रहे हैं। अगर आपको मेल डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय अपडेट, ठीक है, ऐसा मतलब वो बेस पे आपको नाम हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैच अभी कौन सा आपके माइंड में सिक्योरिटी करना है या हाँ सिक्योरिटी बोले तो एचआर फोल्डर एक्सेस बोल के डालो यहाँ पे। हाँ एचआर फोल्डर एक्सेस। हाँ आपने ऑलरेडी कुछ नाम दिया है तो ठीक है, एडमिन एचआर डालता हूँ। एडमिन एचआर चलेगा। एक्सेस फोल्डर एक्सेस है कुछ तो ये ग्रुप स्कोप में है। ग्रुप स्कोप में ग्लोबली रहेगा क्योंकि सभी अभी और एक से दो अगर डोमेन होता है आपके इन्वायरमेंट में तो वो सभी के लिए आएगा, लोकल कभी रखने का नहीं। तो ये हमेशा आप जब प्रोडक्शन में काम करते हैं तो वो ग्लोबली रहेगा। हाँ ग्लोबली। अभी ये प्रोडक्शन ही पकड़ के चलो। हाँ ऐसा ही रहेगा। हाँ, कुछ चेंज नहीं। सेम सिर्फ आपको नाम वगैरह डोमेन नेम वगैरह बदलेगा, बट जो अभी हम जो फॉलो कर रहे स्टेप्स वो सेम ही रहेगा, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपका ग्रुप का नाम हो सकता है डिफरेंट रहेगा, यूजर डिफरेंट रहेंगे, बाकी की जो स्कोपिंग वगैरह है ये इसी तरह के रहेंगे। जो स्कोप है, ग्रुप टाइप तुमको सिक्योरिटी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी ओके कर दो। तो आपका ग्रुप कहाँ पे आया, रिफ्रेश करो, आया हुआ रिफ्रेश करो, नहीं आया ना ऊपर एडमिन एचआर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप दिया है सिक्योरिटी ग्रुप, राइट, यूजर। तो अभी अपने को डिस्क्रिप्शन अगर आपको दिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन भी आता था
जैसा अच्छा, कि आफ्ताब के आगे नेट में आईटी एडमिन लिखा है, हाँ। तो इससे क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिफाई होगा आपको देखने से। अभी वो समझ लो, अगर आप यहाँ पे हम डबल क्लिक करो, मैं बता दूं उसको। हाँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिखो शेयर फोल्डर एक्सेस टू शेयर शेयर फोल्डर access access to HR and admin team. Admin team. इससे क्या अंडरस्टैंड हो रहा है कि कोई भी देखेगा ना, मतलब अभी आपके बंदे जैसा कि विंडोज एडमिन 10 से 8 लोग रहेंगे, एक दो तो नहीं रहते, राइट। तो अभी आपने कुछ किया, आपको तो पता है, देखने समझ में आएगा, बट इन आफ्ताब आज में शिफ्ट में आया, अरे तनवीर तो क्रिएट करेगा, हाँ मेरे को जाके देखना पड़ेगा अंदर और ये क्या। तो ये डिस्क्रिप्शन देने से क्या हो जाएगा, इसको समझ में, अरे हाँ ये इसके लिए किया है कि एचआर और एडमिन फोल्डर टीम को शेयर फोल्डर का एक्सेस देने के लिए, सिंपल। तो इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन हम जो कर रहे चीज को, वो आसान रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर जाए देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अंदर किसको ये लोगों ने ऐड किया, तो उससे समझ में आ रहा है, हाँ लगता है ये लोगों के लिए ऐड किया है मेरे एक्सेस देने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, स्टार्टिंग में दिख जाता है। ये मेथड स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं हम इसको, सब लोग फॉलो नहीं करते, बट ये अच्छा तरीका है, फॉलो करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए क्या पर्पज क्या है उसका, ओके, राइट। So by seeing that group description, I will understood, okay, this purpose is for this, right? तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, बाकी ओके करोगे, अप्लाई ओके, हाँ अप्लाई ओके। तो ये तुम्हारा देखो अभी आया, राइट। तो पहले नहीं दिख रहा था, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली आपको देख के समझ में आएगा, ओके। तो ये हमने सर्वर पे क्रिएट किया कल, आफ्ताब भी एक यूजर क्रिएट किए थे, राइट, क्या नाम, वसीम शेख, राइट। तो उस पे डबल करो, देखना क्या अकाउंट लॉगिन नेम है, अकाउंट में जाओ, अकाउंट में आपको लॉगिन क्या दिया है मालूम करने के लिए अकाउंट में देखना है आपको, ठीक है, वसीम कुछ है, राइट। ये आप नाम या डिस्प्ले नेम वो कुछ और रहेगा, बट एक्चुअली जो आपको अगर लॉगिन चेक कराना है, कभी कभी क्या होता है, आप अंदाजा लगेंगे कि वो नाम के हिसाब से लॉगिन आईडी बना है, बट ऐसा नहीं होता कभी कभी यार। वो बोले ना यूजर, तुम भी सोच रहे कि अरे वो लॉगिन वही है, वो उसको बोल रहे उसको वो कर रहा है, बट लॉगिन नहीं हो रहा। बट वैसा कभी भी नहीं करने, वहां पे नहीं देखने का, उसका लॉगिन अकाउंट जो एडी अकाउंट जो बना हुआ है देखने के लिए अकाउंट पे क्लिक करने का, यहाँ पे जो है वो ही रहेगा। वो बाकी का चीज क्या भी हो सकता है, कभी अभी हाँ हम पे नॉर्मल सिंपल है, मैं जैसे तुम्हारा नाम दे रहा हूँ, मेरा नाम दे रहा हूँ, मैं वही रख रहा हूँ, बट ऑफिसों में ऐसा नहीं रहता है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रहता है, ठीक है। तुम समझेंगे अरे उसको बोलेंगे तू तेरा नाम डाल लॉगिन कर, ऐसा नहीं, कभी भी वेरीफाई करने के लिए हाँ सेम, उसके लिए याद रखना है अकाउंट में ही जाना है, तो वहां पे जो डिटेल्स है वही वो यूजर को बोलना है, और तुम भी समझना है कि ये इसका अकाउंट है, बाकी का कंटेंट कुछ और रहेगा या कुछ और हो सकता है, कभी भी याद रखना। ये बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, फिर परेशान हो जाते कि लॉगिन नहीं हो रहा, मैं सब सही कर रहा था, बट एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वहाँ पे नहीं देखते कि यहाँ पे कुछ और हो सकता है, राइट। तो एरर ने बताता था फॉर एन एग्जांपल, यूजर नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट बोलता है, तो उससे क्या समझ में आएगा। नहीं while creating the new user, नहीं क्रिएट की नहीं बात कर रहा मैं, क्रिएट तो कर रहे हैं आप, ठीक है, क्रिएट कर रहे, राइट। तो कभी आप नया यूजर क्रिएट करें, यूजर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिए, ठीक है, तो आप दोनों का सेम है, हाँ सेम है, आप क्या समझते हैं, मेरा लॉगिन मतलब मेरा नाम का ही रहेगा, एक समझते, राइट। अगर अभी जैसा कि फॉर एग्जांपल विप्रो का ही अगर चलते हैं अपन, या कैपजेमिनी कोई भी कंपनी, तो क्या करता है यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, बट लॉगिन नेम क्या करता है, फर्स्ट नेम का एक वर्ड लेता है और उसका एम्प्लॉय आईडी डालता है, बराबर, राइट। तो अभी आप क्या अगर यहाँ पे अगर नहीं देंगे तो आपको समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। अकाउंट क्या बना है, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज नॉट अ कंपलसरी कि अकाउंट नेम वही होना चाहिए, मेरा पॉइंट बोलना, वो कुछ और भी हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी डाला है, नहीं तो क्या करेगा फिर वो फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट वर्ड डालेगा, डॉट लास्ट नेम डालेगा, जैसे ठीक है वसीम डॉट नहीं तो डब्ल्यू डॉट शेख समथिंग लाइक दैट। तो मेरा बोला ये है, कभी भी कुछ भी ट्रबल शूट जब भी करते हैं तो कभी भी अंदाजा या ऑब्जम्पशन पे कुछ करना नहीं, आपको वहां पे वेरीफाई करना है
तुमको अगर ठीक है आपको लग रहा है कि इसका अकाउंट इसने जो डाल रहा है गलत, यूजर नेम पासवर्ड और इनकरेक्ट बोले तो क्या हो जाएगा, यूजर नेम तो गलत रहेगा या पासवर्ड तो गलत रहेगा। हो सकता है वो पासवर्ड सही डाल रहा है, तो अभी आपको क्या वेरीफाई करना है, क्योंकि उसको तो वेरीफाई नहीं कर सकता यूजर, क्योंकि आप ही पीछे एडमिन है, आप ही कर सकते हो। तो आपको देखना है आके अकाउंट के टैब में, सिंपल, बाकी का छोड़ देना। वहां पे क्या है वही उसको पूछना है, तो यही डाल रहा है क्या, अच्छा, नहीं डाल रहा तो भाई ये डाल तो हो जाएगा, सिंपल ऐसा। ठीक है, तो ये करो इसको, ये Okay. कैंसिल करो, हो गया, अपने कुछ करना नहीं, राइट। इसको मिनिमाइज करो। अभी आपने आपका एक यूजर क्रिएट किया, आपको पता है, राइट। हाँ, ठीक है, वो अभी यूजर चलता है नहीं चलता अपने को देखना है, समझे। अभी यहाँ पे एक क्लाइंट है, नीचे क्लाइंट है, राइट, विंडोज 10 एक क्लाइंट चल रहा है। एक मिनट, ये मेरा क्लाइंट है, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो मतलब मैं अभी हमने यूजर क्रिएट किया, बट यूजर अकाउंट चलता है क्रेडेंशियल वो देखने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ इसको। ये ऑलरेडी लॉग ऑफ करके करना। हाँ, ऑलरेडी ये आफ्ताब का हमने किया। आफ्ताब को क्या पासवर्ड है आपका, डाल दो पासवर्ड। वही है क्या? क्या डाला? वही है। एंटर करो, वहीं पे एंटर करो। पासवर्ड इनकरेक्ट, W कैपिटल है क्या? हाँ, W कैपिटल। डालू क्या? कैपिटल। आफ्ताब MS MS 84 84 @. बस हो गया इतना चेक। एक मिनट, मेरे ख्याल से आप क्रिएट किए थे, मैं किया था ये। नहीं नहीं, बैठो बैठो, वेलकम। मैंने क्रिएट किया, ये मैं किया था, तो तुम करें शेयर वो वाला। ठीक है, तो अभी मेरे को ये लॉग आउट करेंगे, और अभी तुमने जो क्रिएट किए वो अकाउंट्स को लॉग इन करके देखेंगे कि वो चलते या नहीं चलते। ये लॉग आउट कर रहे हैं। अभी आप जो क्रिएट किए ना, वो उससे लॉग इन। हाँ, लॉग इन करो। ये माउस से जो एक्सचेंज में जो ऊपर एक्सचेंज में कंट्रोल डेल अपन नॉर्मल, हाँ कंट्रोल, हाँ अभी तुम्हारा नीचे अदर यूजर यूज करो, तो तुम्हारा लॉगिन डालो जो भी पासवर्ड। तो इससे क्या हो जाएगा, हमने जो क्रिएट किया वो ऑथेंटिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, डोमेन सर्विस समझ में आएगा। रॉन्ग एकदम डाल के भी देखना गलत कि क्या एरर देता है। डिस्प्ले नेम तुम्हारा तन्वीर जो शेख है वो आया, बट लॉगिन नेम तुम्हारा यूजर नेम, मतलब लॉगिन है, अभी हमने फर्स्ट नेम दिया, हो सकता है वहाँ पे तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी भी हो सकता है, बट ये जैसा अपना एंटी आईडी रहता है एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो वो देखो अभी ये लॉगिन हो रहा है, राइट। तो अपन ये अभी फर्स्ट टाइम है, 1 मिनट तो ये टाइम लेगा। तो इससे कर दो इसको कंट्रोलर डिलीट। नहीं होने बाद कंट्रोल। तो अभी हम और एक चीज टेस्ट करेंगे, रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे 5 से 6 टाइम, तो अकाउंट लॉक होता है क्या देखेंगे, राइट।
तो ये क्या होता है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमने एक्चुअली प्रोडक्शन में हम इसी तरह काम करते हैं और कुछ अलग सा कुछ करते नहीं। इतना है कि बड़ा टीम होता है, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, हम एक ही सर्वर पे Proper दो server पे- mechanism. हाँ। तो ये हमको एक फील कराना है कि हाँ हमने इसी तरह का काम करें, हम हाँ सर्वर पे लॉग इन कर। कैसा हो जाता, फिर आदमी नया नया रहता, वो मालूम भी रहता, फिर भी वो डर के मारे कहीं गलत जगह क्लिक करता है। Hesitate एक्चुअली होता है। इसमें जो कंसोल्स है या टैब्स है वो भी हम सही क्लिक करना, राइट। अब जैसा है कि मैं नया गलती यूजर से। क्रिएट करना, उसमें बहुत सारे 3 4 5 है, अभी एकदम एक से दो टाइम देने थोड़ा कंफ्यूज होता ही है। अपन एक 2 3 4 टाइम करें तो हाँ नया यूजर है, थोड़ा आराम से ओके ये नया है, ये ऑर्गेनाइज है, ये कंप्यूटर ऑब्जेक्ट ऐसा। तो उसी तरह अगर मेरे को पासवर्ड रिसेट करना है तो कैसा करना है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, वो यूजर पे जाना है, जो भी यूजर उसको बताओ फाइंड कैसा करते हैं अपन, वो पे क्लिक, उसको फाइंड करेगा, उसको राइट क्लिक करना है सिंपल, वहाँ पे रिसेट पासवर्ड बोल के आता है। हमको जो भी नया पासवर्ड डालना है वो यूजर को बताना है, दैट्स इट, सिंपल पासवर्ड टिकट के लिए। अभी इसको लॉग ऑफ करो, लॉग ऑफ जो भी है वो पावर पे रहे, पावर जो बटन दिख रहा है ना उसके अंदर रहेगा। ये निकाल। हाँ उसके अंदर, बस उसको क्लिक करो, क्या दिखा रहा, लॉग ऑफ नहीं है, इसको सर्च करो तो लॉग ऑफ था वो, सर्च वहाँ पे सर्च करो लॉग ऑफ है। वो टाइम में क्या साइन आउट बता रहा था क्या? हाँ, साइन आउट साइन आउट टाइप करो। तो यहाँ पे क्या है? ये है ना, ठीक है। अभी तुम क्या करो, गलत पासवर्ड डालो 5 6 टाइम, तो अपन देखेंगे वो अकाउंट लॉक होता है नहीं होता है। ओके ठीक है। एक दो एंटर करते हैं, बस एंटर करो। हाँ द पासवर्ड, ठीक है, डालो ओके। और टाइम लगेगा शायद इसमें। करेक्ट डालेंगे नहीं नहीं ना, तो वेरीफाई कर रहा है हम लॉक करेंगे। कितने टाइम है, 5 टाइम, ये 5 ये पांचवी बार। और टाइम राउंड डालो, और टाइम राउंड डालो। अभी सही डाल के देखो ट्राई होता है। एक्चुअली लॉक नहीं हुआ, तो वो पॉलिसी इसको शायद अप्लाई अपन नहीं में हुआ। apply नहीं हुआ। हाँ तो वो अपन देखेंगे, बट नॉर्मल अभी यहाँ पे मैं अगर ये कंसोल में जो तुम्हारा ये तुम्हारा डबल क्लिक करो तुम्हारे अकाउंट पे, अकाउंट के पास जो ये यहाँ पे एक्चुअली चेक मार्क आता है, लॉक होता है तो ऊपर ऊपर इधर इधर, ये हाँ, क्या? नहीं नीचे, अच्छा, हाँ, ये। यहाँ पे अभी ये करो Unlock। अभी तो अनलॉक है, चेक मार्क करो देखना, हाँ अभी अप्लाई करो, एक्चुअली अनलॉक हुआ है, राइट। तो नॉर्मली कैसा है, ऑटोमेटिक होता है, वो एक पॉलिसी आता है, वो ग्रुप पॉलिसी में सीखेंगे, वो है अप्लाई नहीं हुआ उसके लिए, वो लॉक नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी आपको और कुछ क्रिएट करना है तो यूजर या कुछ करना है ग्रुप तो करो,
और देखना है टैब्स कुछ सर्च कैसा कर करो। HR टीम, एडमिन टीम हो गई। यस, हाँ सिक्योरिटी हाँ ग्रुप डिस्क्रिप्शन। अब ये डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन भी ऐड करने का रहेगा तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, करो। हाँ अभी डिस्क्रिप्शन कभी भी एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ कुछ सिर्फ तुम वो जो ग्रुप नाम जो देते हैं ना उसको नहीं करने का, फिर कैसा हो जाएगा वो ऑलरेडी किसको तुमने दिया होगा उधर एनेबल किया उसको मॉडिफाई नहीं करने का। जो ग्रुप जैसा GIP को दिया राइट, हाँ। उसको नहीं करना, बाकी के चेंजेस कर सकते हैं। हाँ। अभी एक टाइम तुम प्रोडक्शन में गया फिर वो कहीं पे तुम ऐड करते हैं, मैं वो समझाता हूँ अच्छा किसका अच्छा, कहाँ है। ग्रुप नेम एडिट हाँ नहीं हो एडिट नहीं सकता। करना, बाकी की चीजें उसमें नोट्स है या डिस्क्रिप्शन है या परमिशन लेवल्स है वो सब चेंज। अपने को हमारा बहुत सारा बड़ा इन्वायरमेंट है राइट, मतलब अभी तो इतना छोटा है 2-4 है, मेरे को पता है कि कहाँ पे है यूजर, बट अभी मेरे को बहुत इन्वायरमेंट है, मेरे को मालूम नहीं कि सिर्फ यूजर का नाम मालूम है, मेरे को ढूंढना है उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये फाइंड ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव डायरेक्टरी, इस पे क्लिक करूंगा। अभी आप डालो जो भी आईडी अपने को है। नहीं ये कुछ नहीं थोड़ा है। भी डालेंगे चलेगा, फर्स्ट नेम भी डालेंगे तो वो सर्च करेगा, स्ट्रांग है वो। करेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, वो डालेंगे ना वो मिलते जुलते नाम उसको लेकर आएगा, लेकर आया वो। ठीक है, तो अभी समझ लो मेरे को इसका डिटेल्स मालूम करना है, भाई कहाँ पे यूजर है, किधर है, इसको कुछ कुछ ग्रुप में ऐड किया है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। देखो इस ये कहाँ पे अभी देखने के लिए अपने को एड्रेस ऑब्जेक्ट अकाउंट। ने ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे एक और एक वो आता है, इसमें नहीं है। मतलब अभी ये तो ग्रुप्स है, मतलब इस पे हमको किसको इस पे एक्सेस है। अच्छा जैसा कि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप तुमने किया क्रिएट, तो वो मैं ग्रुप में ऐड करूंगा तो उसका जो भी फाइल्स है फोल्डर का एक्सेस है इसको आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो हम शेयर फोल्डर्स का देखेंगे, मैं बताऊँ। तो ये और एक मेरे को बताना था वो पॉइंट, मतलब कौन सी OU में है इस बताया मेरे को। अच्छा, तो वो ऑब्जेक्ट एक मिनट, तो यहाँ पे उसको enable करता हूँ। Advanced feature में advanced feature में अभी शायद दिखेगा है। अभी अपन वो यूजर को वही OU में या नहीं, यहाँ पे आपके डोमेन जो है यहाँ पे भी आप क्लिक रखो और आप सर्च करो, वो बताएगा, तनवीर सर्च करो। ठीक है, अभी डबल क्लिक करो। ऑब्जेक्ट वो पहले ऑब्जेक्ट बोल के नहीं दिख रहा था राइट, अभी ऑब्जेक्ट दिखा, वो मैं एडवांस फ्यूचर के नहीं ओके। तो इससे मालूम पड़ रहा है आपको कहाँ पे है, दिख रहा है आपको डिटेल दिया, और आप टेक्निकल टीम। हाँ वो दिया, और आपको क्रिएट कब हुआ, कुछ मॉडिफाई हुआ क्या, हाँ, वो हाँ। सब दिखा रहा है आपको, पता है ओके। राइट। तो ये इसका जो USM जो बोला अपडेट सीक्वेंस नंबर, जो अपडेट हुआ है तो ऑटोमेटिक जब करंट जब था अपन क्रिएट जब भी करे तो वो था, उसके बाद अपडेट हुआ वो ऐसा चेंज होते गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक और भी एक ऑप्शन है, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंट डिलीशन। कोई मैं बोला ना हाँ, गलती से are you sure you want to? आर यू श्योर बोल के एक पॉपअप देगा तुमको। ओके। ये अभी इसको कैंसिल करो, कैंसिल करो, आप राइट क्लिक करो। मैं अभी जैसा कि मेरे को टिकट आया कुछ, मेरे को पासवर्ड रीसेट करना है, तो सिंपल आप गए तो कंसोल में सर्च करें ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो तुमने रीसेट पासवर्ड किया, ठीक है, तो कुछ भी पासवर्ड आप रख दो। जो मेरा पहला पासवर्ड है वो हटा के दूसरा रखो। हाँ
ठीक है। और कभी भी ये अनलॉक द यूजर अकाउंट करना है, क्योंकि रॉन्ग पासवर्ड जब होता है ना, तो वो उसका नॉर्मली थ्रेशोल्ड रहता है 3 का रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई 5 देते हैं, ठीक है। तो वो उन्हें 3 से 4 टर्म गलत तो डाला चाहिए, उसके लिए तुमको रिसेट के लिए आया, तो उसके लिए कभी भी वो अनलॉक करना है। अगर तुम Check in रिसेट भी करना करके देंगे ना, वो और लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि लॉक रहेगा अकाउंट उसका। ये आज से कभी भी पासवर्ड रिसेट करे तो ये भी चेक Check मार्क mark। हाँ करा के अनलॉक करके दे देने का। अभी ओके करो, पासवर्ड एडमिन भी चेंज। अभी इसको राइट क्लिक करो और क्या क्या ऑप्शन है देखो तुम। देखो अभी रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड टू ग्रुप कर सकते हैं, नेम मैपिंग, डिजेबल अकाउंट, मतलब आपको टेम्पोररी डिजेबल करना है तो कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। मूव मतलब कहाँ, अभी एक ओई में टेक्निकल ओई एक था, एक एचआर ओई, अगर तुमको एचआर में डालना है मतलब हो सकता है 1 साल के बाद वो एचआर में बदली हुआ हो, तो उसको तुम मूव उधर कर सकते, जस्ट क्लिक करो उधर मूव करो, वो ग्रुप मतलब वो ओयू में जो भी पॉलिसीज है उसको अप्लाई होंगे, ये ओयू के निकल जाएंगे उसको, ठीक है। ओपन ये सैमुअल, ये तो प्रॉपर्टीज में आपको पूरा प्रॉपर्टी दिखेगा, ठीक है। ये जो भी चीज है, तो आप करो टैब्स में वगैरह किधर क्या है। इसको तुम क्लोज ही करो पूरा, बाद में नए तरीके से ओपन करो। अभी कहाँ से ओपन करना है आप ट्राई करो। Tools. तो ये भी एक टास्क है एक्चुअली। कभी अपने को नए हैं, हमको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और हम ये भी चीज सीखते सीखते फिर बाद में स्लोली होता है, क्योंकि कभी कभी होता है सब पता है बट ओपन कैसा करना ऐसा भी होता है, ठीक है। ये भी आपको ऐसा करेंगे तो ये इसके लिए मैं नहीं करने लगा है। हाँ, Sites and नेक्स्ट साइड यूजर्स एंड properties. तो अभी आपको अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्या करना है, तो वहां पे अभी तुमको digisol.in दिखा रहा है, उसको हमको एक्सपैंड करना है, वो बाजू में है ना लेफ्ट में थोड़ा हाँ एरो को एक्सपैंड करो। अपने को जाना है कौन सा ओएमई करना है, इंडिया इंडिया में, हाँ उसको क्लिक करो। और कहा जाना है, पुणे में जाना है मेरे को, राइट, पुणे में जाओ। अभी किस में एचआर में करना है, टेक्निकल कौन सा जो करना है वो हिसाब से उस पर राइट क्लिक करना है अपने को बस। जिधर भी एचआर में करना है कुछ प्रॉब्लम नहीं, एचआर में करो राइट क्लिक करके, उस पर कर जाना तो हाँ राइट क्लिक। अभी क्या अपने को न्यू पे जाना है, क्या करना है मेरे को, यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट, या ग्रुप करना है, जो भी तुमको कर सकते हैं वो करना है। अभी तुम डिटेल दो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी तुमको देना, किसका भी दे सको, कुछ भी टेक्स्ट लिखो या किसी और का भी नाम लिखो, कुछ भी कर रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या भी दे सकते, टेक्स्ट लिखो, यहाँ पे लास्ट नेम यूजर बोल के लिखो तो टेक्स्ट यूजर हो जाएगा। यूजर लॉगिन नेम में कुछ भी दो, टेक्स्ट दो, यूजर दो, तुमको जिस तरह हर कंपनी का अपना ना नेमिंग कन्वेंशन रहता है, वो फॉलो होना है। यहाँ पे अपने को समझने के लिए एक कुछ भी टेक्स्ट या यूजर जो फर्स्ट देना है लास्ट नेम दे देने का है बस। तो ये इनिशियल है, ये इनिशियल्स है वो, एक्चुअली हम लोगों के लिए जो सरनेम अपन जो बोलते हैं वो नॉर्मली रखते हैं, बट हमारे को यहाँ पे काम में नहीं आता है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा हो जाता है, इनिशियल्स कहीं के वो बाहर वो लोगों का नाम और कुछ इनिशियल्स वगैरह रहता है, छोटा फॉर्म में वगैरह रहता है तो या कुछ रखते तो उसके लिए काम में आता है। तो अभी यहाँ अगर वहाँ पे अपने जिधर काम हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो बोला इनिशियल में मेरे को ये डालते रहना है, ठीक है, ऐसा कुछ रहा तो जैसे मिस्टर मिसेस भी कुछ रहते कोई का ऐसा कुछ रहा तो वो तुम जो गाइड करेंगे वो हिसाब से तुमको देना है। अभी हमको ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट, अभी पासवर्ड आप अपन अभी तक ऐसा नहीं देखे, ये हम ये रख के देखेंगे कि हमको प्रॉम्प्ट करता है क्या नहीं देखेंगे, राइट। अब ये सेम डिफॉल्ट में रहने, मतलब इसी तरह में हम क्रिएट करेंगे, जो प्रोडक्शन में हम इसी तरह करते हैं, मतलब वो चेकमार्क अभी हटा के कर रहे थे, अभी नहीं, हम देखेंगे कि चेकमार्क रख के हमको प्रॉम्प्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। अभी जो पासवर्ड जो भी आपको देना है,
चार में देखो, क्लिक करो ऐसे, Right. हाँ वहाँ पे, हाँ आया राइट। तो अगर आपको कुछ देखना है तो प्रॉपर्टीज या कुछ आप भूल गए तो राइट क्लिक करो या डबल क्लिक करो, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा राइट। तो आपको कुछ भी, जैसा कि टेलीफोन मैंने नंबर नहीं डाला होगा, एड्रेस में कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एड्रेस में अगर क्लिक करो राइट, आपको किस स्ट्रीट डालना है, पोस्ट ऑफिस, सिटी, और जो भी कंटेंट आपको मॉडिफाई करना कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम जस्ट सेव करना, फिर वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी ये हुआ राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी वो ये यूजर लॉगिन होता है या नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करो, वहां से अभी वो सर्वर से मिनिमाइज करो ऊपर, हाँ हाँ आया तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से क्लिक करो इसको, हाँ नहीं ये Blue वाली हाँ उसको मिनिमाइज करो। हाँ यहाँ पे क्लाइंट में थोड़ा कर्जर वो कंप्यूटर के पास लेके जाओ, एक पॉपअप होएगा तुमको क्लाइंट मशीन पे नीचे वाले में, हाँ हाँ इधर 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 इधर, हाँ 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 उस पे, हाँ क्लाइंट वाले पे क्लिक करो, हाँ बाजू वाला, हाँ इस पे करो, हाँ इसको वहाँ पे एक्सचेंज में जाओ, एक्सचेंज, हाँ कंट्रोल डिलीट अदर यूजर। ठीक है, हाँ अदर यूजर में जाओ, तनवीर को रहता है नहीं अदर यूजर, अभी तुम जो क्रिएट किए वो डालो, जो भी नाम है नाम पासवर्ड जो भी, हाँ तो हमको प्रॉम्प्ट करना चाहिए एक्चुअली। अभी ओके करो, हाँ आया राइट। मतलब ये कंपलसरी तुमको फोर्स कर रहा है, नहीं तो अब नॉर्मली हमें ऑप्शन नहीं देगा, यूजर क्या करेगा, ठीक है ये पता नहीं ये चला लेता हूँ बोलेगा राइट। तो बट सिक्योरिटी पर्पज के लिए रिस्क है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि अभी 10 यूजर क्रिएट हुए, 10 का एक ही पासवर्ड गया है राइट। तो वो एक दूसरे को बोलेंगे, हो सकता है अज्यूम करेंगे हाँ ये इसी का चेक मार्क हमेशा देना है प्रोडक्शन में। ठीक है ओके करो, अभी आप न्यू पासवर्ड डालने के लिए बोले, हाँ अभी आप न्यू पासवर्ड डालो कुछ भी। मैच नहीं हो रहा। अभी ओल्ड पासवर्ड डालो पहला, वापस से ओल्ड हाँ ओल्ड डाला हो गया हो तो। अप्रैल तक, हाँ सब एसडी सब लोग। लिया पासवर्ड एक उसमें भी मिनट, कैप्स लॉक वगैरह ये आराम से, प्रॉब्लम नहीं। अभी तुम जो रख रहे आराम से वही याद रख के फिर नीचे यूज करो कैप्स लॉक है। नहीं वो चेंजिंग प्रोसेस आ रहा है। तो अभी क्या है, जो नया तुम पासवर्ड रखे वो पासवर्ड लॉगिन करने देगा। ओके ओके करो, ठीक है। अभी तुम वो एक्सेप्ट किया होगा, जो तुमने नया रखे थे एक्सेप्ट किया।
तो ये नॉर्मली अकाउंट क्रिएशन का पासवर्ड रीसेट वगैरह चेंजेस करना है ऑब्जेक्ट को वो, और कोई ग्रुप में ऐड करना है वो सब। ग्रुप में ऐड करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली ये जब तक लॉगिन होने। अभी हम ये यहाँ पे गए, ठीक है। अभी मैं ये यूजर को इसमें तो ऐड कराना हो, मेरे को एक्सेस देना है, मतलब सिक्योरिटी, मतलब कोई फोल्डर का हम लोगों ने क्रिएट किया, मेंबर में जाना है या मेरे को, तो वो टाइप करो कुछ नाम था ना, क्या था तुम्हारा, HR फोल्डर क्या था ना, HR ऐसा ही कुछ करो। अभी चेक नहीं मगर मैं करूंगा तो रिलीवेंट वाला उठाएगा, HR ग्रुप कुछ तो था शायद, राइट। तो अभी तो HR ग्रुप को जो भी एक्सेस है, मतलब मैं HR ग्रुप को क्या करूंगा, कोई शेयर फोल्डर है HR, उसको एक्सेस वहां पे ले लूंगा फाइल सर्वर पे, तो ऑटोमेटिक ये यूजर को एक्सेस आएगा। तो उसी तरह हर इसका होता है, हर एप्लीकेशन का ऐसा ही होता है, सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप को एक्सेस देते हो एप्लीकेशन का, तो यूजर को क्या सिर्फ वो ग्रुप में ऐड करते हैं, यूजर को डायरेक्ट नहीं ऐड करते एप्लीकेशन में, ग्रुप में ऐड करते हैं, क्योंकि कल को मेरे को रिमूव करना है वो एक्सेस से, इमीडिएटली मैं सिर्फ कुछ नहीं करूंगा, इसको सिंपली रिमूव करूंगा एक ग्रुप को, ज्यादा कुछ करना नहीं मेरे को, इसमें से हटा दूंगा इसको, अभी एक्सेस चलेगा, अगर मेरे एक्सेस देना है ऐड करूंगा। मतलब इन सिंपल ग्रुप इसके लिए काम में आते हैं, एक्सेस का एक आता है और डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपन मेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बोलते हैं ना, मैक्सिमम टिकट का के लिए ऐड एंड रिमूव, और नया ग्रुप क्रिएशन आता है, राइट, और कुछ भी ऑब्जेक्ट का मॉडिफाई आता है, अगर अकाउंट के रिलेटेड बोलेंगे तो अकाउंट क्रिएशन, पासवर्ड रीसेट, मॉडिफिकेशन, अकाउंट में कुछ बदलाव, मतलब ये चेंज हुआ वो चेंज है, फोन नंबर है, एड्रेस है, कुछ भी ये सब रिलेटेड, अकाउंट लॉकआउट होता है ये, ठीक है, ये अकाउंट के रिलेटेड नॉर्मली ये इश्यू आते हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा तो मैक्सिमम हमको बैकएंड से क्या चेक कर सकते हैं, उसका अकाउंट लॉकआउट नहीं है, पासवर्ड सही डाल रहा है, और जो अकाउंट का नाम है वहीं पे वहां पे डाल रहा है वो, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मशीन नेटवर्क पे है नहीं है देखना पड़ेगा, पिंग कर रहा है कि नहीं अपने इन्वायरमेंट को, हो सकता है नेटवर्क नहीं है तो लॉगिन नहीं करेगा, क्योंकि अपना सर्वर को कनेक्ट नहीं करता है, ऑथेंटिकेट नहीं होता, राइट। वो सब चीजें आते हैं। और बाद में एक्सेस के रिलेटेड, ग्रुप के रिलेटेड बोले तो हम कोई फाइल शेयर फोल्डर्स वगैरह है, उसको हम वो ग्रुप को ऐड करते हो शेयर फोल्डर में, ठीक है, तो एक्सेस हमको उसके हिसाब से मिल जाता है वो। और डिस्ट्रीब्यूशन, कोई मेल भेजने के लिए वो नॉर्मली मेल बॉक्स आउटलुक के लिए काम आता है, कोई एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन ग्रुप है तो हम उसको ऐड करेंगे, ये ग्रुप में अगर आप इसको ऐड करते हैं बंदे को, तो वो ग्रुप को जो भी मेल भेजते हैं, HR भेजता है, एडमिन है कंपनी वाले, वो इसको एक कॉपी आएगा ऐसा, तो उसमें 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों को मिल जाएंगे। तो ये दो चीज है ग्रुप की और ये, तो ये सब चीजें अभी हम, ये थोड़ा ग्रुप्स और ऑब्जेक्ट्स का वो यू का समझ में आया, राइट। तो हम अभी नेक्स्ट पॉलिसीज के बारे में अपन कल देखेंगे। पॉलिसीज वो है, यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, एडवांटेज भी है, जैसा कि कोई नेटवर्क ड्राइव फोल्डर है तो वो उसको पता नहीं, उसको याद रखना पड़ेगा लिख के, वो क्या ऑटोमेटिक मैप भी हो जाएगा, जैसा लॉगिन करेगा उसको मैप होएगा, वो HR फोल्डर का एक पाथ तो रहेगा, राइट। एक्सेस है तुम्हारे को, बट एक्सेस करने के लिए पाथ भी चाहिए ना, यूनिक सर्वर का नाम वगैरह, आपको थोड़ी याद है, ऐसा ये कि HR का है 8-10 अगर फोल्डर आपके है, एक्सेस है उस पर, तो हर 10 तो नहीं याद रखेंगे, उसके लिए आपको क्या करेंगे, हम ऑटोमेटेड आपके अकाउंट को मैप करेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको मेट्रो दिखेंगे, जो तुमको चाहिए क्लिक करेंगे, एक्सेस रहेगा तो ओपन हो जाएगा जो काम, इस तरह। तो अपन वो पॉलिसी, और पॉलिसी और दूसरा मतलब वॉलपेपर आएगा और रिस्ट्रिक्शंस आएगा, तुमको कुछ भी कर नहीं सकते, नेटवर्क ड्राइव पे अपने नेटवर्क जो कार्ड है उस पर चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, या कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, या पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, या ऐसा सब चीजें रिस्ट्रिक्ट कर सकते, उसको हम बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी, सेटअप पॉलिसी, वो हम कल अपन वो समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अपन इतना ही यहाँ पे, ओके, ठीक है ना। अभी तक का तो तुम मेरे ख्याल से सैटरडे आप तुम्हारा बाकी का पोर्शन के लिए करेंगे, मैं तुम्हारे को आया 1 घंटे का, तो तुमको भी आना है तो आ सकते हैं, अगर कुछ रिव्यू करा लेना है तो। वो इनका 1-2 दिन का गया ना, तो तुम्हारा वो मेरे ख्याल से एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स इंस्टॉलेशन है और एक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन का इनका गया मेन, मेरे ख्याल से 2 चीज। तो वीडियो में तो देखो, वीडियो में हाँ देखा मैं थोड़ा थोड़ा, और वो अपन थोड़ा मैं वो रिव्यू लेता हूँ तुम्हारे लिए और उसके लिए भी लेता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा, देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल ग्रुप पॉलिसी, चलिए उसके बाद 1 बाय 1 नहीं।
चलाओगे? हाँ चलो वो कल भी देखेंगे हम सब एक बार देखो। हाँ मैं वो बात करता हूँ कल। कल सैटरडे है नहीं, आज जुम्मा है तो हाँ कल एक करेंगे। हाँ। हाँ